اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہماری ایک بہن جو ہے وہ یہ سوال کر رہی تھیں کہ کیا کیا جائے ہمیں امام کے ظہور جو ہے اس کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کچھ چیزیں تھیں جو میں بتا چکی ہوں کہ ہمیں امام کی خصوصیات کا علم ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہماری معلومات ہونی چاہیے، ان کا ذکر ہمیں احترام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ان سے محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ ہم ان کے ذکر کو ہمیں لوگوں میں مقبول۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم لیتے ہیں کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کو میں اپنی ڈاکٹر نگہت افتخار سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی بالکل، آپ بات کریں۔ السلام علیکم میری بہن۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر۔ آپ کا پروگرام دیکھا، بہت اچھا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ وہی بات جو میری پریویس بہن نے کہی ہے، میں بھی وہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام پریزنٹ کر رہی ہیں، اور پروگرام اس طرح کرنا چاہیے کیونکہ کمیونٹی کو ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی ہی گفتگو میں ابھی باہر سے آیا ہوں، آپ کی گفتگو سے میں ایک لفظ لوں گا کہ آپ نے بولا تھا کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ بے شک۔ تو اب ہمیں پہلے یہ بھی بتا دیجئے کہ تیاری کہاں سے کرنی چاہیے، اور دوسری بات جو ہے نا کہ جو میں سب سے پہلے جو بیسک جو میں سوچتا ہوں کہ جہاں سے ہم کو تیاری کرنی چاہیے، میں آپ سے وہ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں آبزرو کرتا ہوں جب باہر جاتا ہوں۔ ابھی میں کاربور سیل سے آیا ہوں، وہاں پہ ہمارے مسلمان بھی تھے، بس اسٹاپ پہ بھی میں نے اپنے مسلمان بہنوں کو دیکھا کھڑے ہوئے، یہاں تک دیکھا کہ وہ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں، بس آئی ہے اور میری ایک بہن نے سکارف لیا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، وہ اس نے کیو کو جمپ کیا، اور وہ دوسری ایک گوری وہاں پہ کھڑی تھی اور وہ آگے بڑی بڑھیا، اور اس نے اس کو سٹاپ کیا کہ یو ہیو ٹو بی جوائن دا کیو۔ تو ہمیں جو ہم مسجد میں جب جاتے ہیں، رمضان شریف میں جب ہم روزہ کھولتے ہیں، ہمارے جو ٹوائلٹوں کی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ سیولائزڈ، اگر یہاں سے میری بہن اگر آپ سٹارٹ کریں یا علماء دین اس کی جو نا زیادہ سے زیادہ یہاں سے توجہ دے، یہ بیسک پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ سیولائز جو نا آپ کی اسمائل، آپ کا سوری کرنا، یہ دوسرے کے دل میں آپ اتر جاتے ہیں۔ اگر محمد علی باہر کوئی ایسا کام کرے گا، وہ کیا ہوگا، جیسے ہی پتہ چلے گا یہ محمد علی ہے، وہ دوسری کمیونٹی والے، دوسرے لوگ کیا کریں گے، وہ پورے کے پورے اسلام کے دین کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا تہمت لگا دیں گے، یا خائف ہو جائیں گے، یا پیچھے ہٹ جائیں گے، بددل ہو جائیں گے۔ بالکل میری بہن، تو یہی ہے کہ میں پورا ایمبیسیڈر ہوں محمد علی۔ میں یقین جانی میں جب گھر سے نکلتا ہوں بہن، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، خدا کی قسم میں ایسا ایکٹ کرتا ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسی نہ ہو کہ میرا نام محمد علی ہے کہ کوئی انگلی اٹھائے اور اسلام کے اوپر انگلی، کیونکہ میں ایمبیسیڈر بن کے باہر نکلتا ہوں۔ بہت یہ علماء دین اور میری بہن آپ کا کام ہے کہ ہمیں سیولائز پہلے کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امام زمانہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام سارے کے سارے جو نا وہ ان کا پتہ چل جائے گا یہ ان کے ماننے والے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم آپ کے پروگرام کو بہت اچھی بات کی آپ نے۔ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں، آپ سنتے رہیے گا پروگرام۔ جیسے کہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو عام سماجی رویہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے امام جعفر صادق کا ایک قول کوٹ کیا تھا کہ خدا اس پر رحم کرے اور اسے نعمتوں سے سرفراز کرے کہ جس نے لوگوں میں ہماری محبت پیدا کی اور کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے لوگ ہم سے بددل ہوں اور نفرت کریں۔ بخدا اگر کسی نے ہماری بامانی باتیں لوگوں تک پہنچائی تو اس نے لوگوں کے دل میں ہماری محبت پیدا کی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ یقیناً وتیرہ رہا ہے خاندان رسالت کا اور تمام ائمہ علیہ السلام کا، تو اور میری بیوی کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ تو اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے امام، جب ہم باہر نکلتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم اپنے دین کے، ہم اپنے عقیدے کے نمائندہ ہیں، ہم اس کے سفیر ہیں، تو ہمارا طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمیں اسی طرح آپ نے مثال دی ابھی ٹوائلٹ کی کہ جی بہت گندے ہوتے ہیں، صفائی کا انتظام نہیں رکھتے ہیں، ہم لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ میں نے اس سے اگلی جو میں بات کر رہی تھی معرفت امام حاصل کرنے کے لیے، وہ میں کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں انتظار کرنا ہے، اور اس وقت ساتھ ساتھ میں نے یہ بات کہی تھی انتظار کے ساتھ اہتمام کرنا
کرنا ہے. اور اہتمام کرنے کی جب بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنا ہے, نہ صرف یہ کہ عبادات کو قائم کرنا ہے بلکہ جن کا انڈائریکٹ تعلق ہے ان چیزوں کو قائم کرنا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ جی ہم باوضو رہیں اور ہم صفائی کا خیال رکھیں اور ہم نجاست سے دور رہیں, کیونکہ جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں, کسی مقدس ہستی کا, کسی بابرکت ہستی کا, کسی عظیم ہستی کا, تو لازم ہے کہ ہم تو کم از کم صاف ستھرے تو ہوں, ہم باوضو ہوں, ہمارے اندر صفائی ہو, ہم نجاست سے دور ہوں. تو جب ہم اپنی اور میں نے کہا تھا کہ صرف اپنے گھر نہیں سجانا ہے, ہم نے زندگی کو سجانا ہے, ہم نے کائنات کو سجانا ہے کہ اس کائنات کا, اس وقت کا امام جو ہے اس کی جو ہے اس کے ہم منتظر ہیں اور اس کی آمد کی ہم تیاری اور اہتمام کر رہے ہیں. اور ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اظہار بھی کریں اپنے اشتیاق کا. اس خواہش کو دل میں نہیں دبا کے رکھنا بلکہ دنیا کو متعارف کرانا ہے اس ہستی سے اور اس کے فضائل سے, کیونکہ فضائل آل محمد کا جو ذکر کرے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کو بہت سی نعمتیں پروردگار ہے. اور یہ پروردگار عالم کی توفیق ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. پروردگار جسے یہ توفیق دے دے کہ وہ فضائل آل محمد بیان کرنے کی سکت جس کی زبان میں دے دے تو گویا اس نے خدا کی رضا کو حاصل کر لیا. پھر میں نے کہا تھا کہ امام کی جدائی کے قلق پہ بات ہو رہی تھی. جی ایک ہمارے پاس اور کالر موجود ہیں, لے لیتے ہیں کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میری بہن محمد علی, ایک دفعہ آدھا سیکنڈ لوں گا. میں اپنا بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, شاید وہ کمیونٹی میں بھی اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے, اچھی بات کرنا. میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پورے گھر کا رب کی جنت ہے اور رب تعالیٰ نے یہ باہر بھی میرا گھر ہے اور یہ اندر بھی ہے. سپوز کہ جب میں چنگم کھا رہا ہوں میری بہن, اگر میں وہ چنگم اپنے گھر میں پھینکوں گا تو کیا اچھا لگے گا, اسی لیے میں باہر بھی چنگم نہیں پھینکتا. یعنی کہ میں اپنے گھر کو اور باہر کو یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی یہ جنت ہے اور اس کو میں نے جس طرح اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہوں اسی طرح میں نے باہر کے ماحول کو اور اپنے ایکٹ کو ایسا رکھنا ہے کہ کوئی مجھ سے افینڈڈ نہ ہو. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ ہم ہی نمائندہ ہیں اور ہم نے ہی جو ہے وہ ترجمانی کرنی ہے اپنے دین کی, تو لازمی ہے کہ ہم اپنا صرف اپنی ذات نہیں بلکہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول اس کو صاف رکھیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور ہاں ابھی جو سلسلہ گفتگو تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ہمیں اظہار بھی کرنا ہے اس اشتیاق کا اور امام کی جو خصوصیات ہیں ان سے نسبت قائم کرنی ہے, ان کے فضائل کا ذکر کرنا ہے, ایسی محفلوں کا انتظام کرنا ہے جہاں فضائل امام بیان کیے جائیں اور ان کی توصیف اور قصیدہ اور ان کی تعریف کرنی ہے. اور نہ صرف یہ کہ تعریف کرنی ہے بلکہ گریہ کرنا ہے. ایک اور ہمارے پاس کال ہے, میں ایک کال لیتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں, میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں جی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, باتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں, لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بغیر محبت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت سے محبت کرنے کے بعد اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرو کہ ہم میں کیا خوبیاں آئی ہیں جس انسان کے اندر چینجنگ ہی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر, اللہ تعالیٰ کے رسول کا نام لے کر اور اہل بیت کا نام لے کر تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. میری دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں, جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارا غضب لوگ دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کا پروگرام بڑا زبردست ہوتا ہے, جو لوگ بھی سن کر اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا, تو جو عمل نہیں کر سکتا اس کی کامیابی میں بہت دیر لگ جائے گی. اپنے آپ کو سوارو, اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کے ذریعے سے, حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے, حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے ذریعے سے
जब तक हम प्यार नहीं अपने अंदर दिखाएंगे ये वक्त के इमाम हमको नजर नहीं आ सकते। प्यार लाजमी है। जनाब सिकलदा जाने चाहता हूँ और जनाबा का शुक्रिया और जनाबा को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ ज़बानी कलामी क़सायद या तौसीफ़ काफ़ी नहीं है, उनके फ़ज़ाइल का ही ज़िक्र काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने अमल को उसी अंदाज में ढालना है जैसे कि ताकीद की गई। अगर उन्होंने नमाज कायम करने को कहा है तो नमाज को कायम करना है। अगर इबादत को कायम करने को कहा गया, ताकीद की गई है, तो उन्हें हमें फ़राइज़ और वाजिबात को सही वक्त पर खुशू खुशू के साथ अदा करना है। उसके बग़ैर जो है वो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। जब तक हम और इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी हमें करना है। और बात हो रही थी गिरिया करने की, मोहब्बत। अभी आपने कहा कि हमारे दिल में इनकी मोहब्बत होनी चाहिए हम ताकि उनकी सीरत पर अमल करें। तो मोहब्बत, जब जुदाई होती है तो गिरिया भी होता है, जब तकलीफ़ होती है तो गिरिया भी होता है। तो हमारा इमाम जो है वो गैबत में है, हमसे दूर है। हमारे दिलों में अगर उनके लिए मोहब्बत है तो यकीनन हम पर लाजिम है कि हम उनकी जुदाई में गिरिया करें। उनके आने का जिस तरह इश्तियाक़ है, और मेरे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा ज़िक्र हो, आले रसूल का ज़िक्र हो, उसके फ़ज़ाइल का ज़िक्र हो और इमाम वक्त का ज़िक्र हो, और मच्छर के पर जितना आंसू भी अगर आँख में आ जाए तो अल्लाह उसके उतने गुनाह माफ़ करता है कि जितने समंदरों का झाग है। समंदरों के झाग के बराबर आपके गुनाह धुल जाते हैं अगर मच्छर के पर के बराबर भी आंसू आपकी आंख में आ जाए। तो इस गिरिये का ये जो गिरिया है ना ख़वातीन व हज़रात, ये गिरिया, ये आंसू, ये अश्क, ये रोना, ये ज़िंदगी की अलामत है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो हंसता नहीं है, वो रोता है। और अगर कोई बच्चा न रोए तो मैं डॉक्टर हूँ, हमें पता है, हमारी कोशिश होती है हम बच्चे को रुलाएं, क्योंकि ये जो रोना है ये ज़िंदगी की अलामत है। अगर हमारी ज़िंदगी में गिरिया ना हो तो ज़िंदगी ख़त्म है। एक कॉलर मेरे ख़्याल में ड्रॉप हो गई है लाइन। तो बात हो रही थी गिरिया की, और ये भी बता दूं कि सही मानों में इस गिरिया व ज़ारी की, इस मातम की जो पहली जुदाई है, बड़ी जुदाई, वो यूँ तो मेरी बीबी ने भी जुदाई देखी और गिरिया किया, और इस तरह गिरिया किया। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने के कहा कि अगर ये अलम, ये दुख अगर रातों पर पड़ते तो वो दिन बन जाती, और दिनों पर पड़ते तो वो रात की तरह सियाह हो जाते। ये गिरिया जनाब ज़ैनब ने भी किया है, बल्कि अपनी शर्तों में से जो बुनियादी शर्त थी जो यजीद को कहलवाई है वो यही है कि एक घर का इंतज़ाम करो। मैं अपने भाई को रोई नहीं हूँ, मैंने उसकी जुदाई में गिरिया नहीं किया, मैं गिरिया करना चाहूँगी, मैं पुरसा लेना चाहूँगी। तो पुरसा देना, इमाम का गम मनाना और इमाम वक्त की जुदाई का गिरिया करना यकीनन हमारे लिए, हम पर लाजिम है, हम पर वाजिब है। न सिर्फ ये हो बल्कि हम पे ये भी एक हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, हम कॉल लेते हैं। हेलो, मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें तो आसानी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं पाकिस्तान से बोल रही हूँ, मेरा नाम सलमा है जी। यकीन करें आपका प्रोग्राम देख के इतनी खुशी हुई है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया सलमा। मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये कहना चाहूंगी कि हम जैसा कुछ किस्मत कोई नहीं है कि हमारे 12 इमाम है और हम हकदार हैं, और जितने दुनिया में लोग हमारे दुश्मन है, हमें अपने अकीदे की हम अपनी हिफाजत करनी होगी और लोगों को बताना होगा कि हम क्या हैं। तो इसलिए हमें इस बात से खौफ नहीं खाना चाहिए। तो इमाम ज़माना के लिए मैं एक रुबाई पेश करना चाहूंगी। तो पंजाबी में कि तेरे नाम चानन ना होवे साडा नेक सितारा नहीं होंदा, तेरा मुनकर तो जो विचे सन हरगिज़ प्यारा नहीं होंदा। जिब्राइल जी। हेलो हेलो नहीं होंदा। तो जी आपकी आवाज़ कट गई थी, दोबारा ये आखिरी शेर दोबारा दोहराइएगा जी। कि हुण आए ता नसगरी दा तेरे बाद गुजारा नहीं होंदा। तो यकीन करें मैं तमाम सुनने वालों को अपनी तरफ से तहे दिल से अपनी मोहब्बत से सलाम पेश करती हूँ। तो मेरे हाथ में आप भी दुआ करें और तमाम सुनने वाले की, क्योंकि मोमन की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। कि मौला मेरी मुश्किलात बेशक। मैं यकीन करें बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है आपका प्रोग्राम देख के ना। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत से आपने हमारे इमाम का जिक्र करते हैं
कि हम जैसा, मैं यही लोगों को कहती हूँ कि लोगों को समझ नहीं है, कोई क्या जाने, तो एक लफ्ज बोलते हैं ना कि बेदर्द जमाना क्या जाने कि उजड़ दिमागी, साडा नुकसान ही बड़ा होया तो साडा असी खुश किस्मत है कि असी हाथ पैवा और निजात पाने वालों में से हैं। बेशक हम खुशकिस्मत हैं कि हम मुंतज़िर हैं अपने इमाम के। एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। ये प्रोग्राम लाइव है या क्या है? जी जी, ये प्रोग्राम लाइव है और इस वक्त गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम तो ये जनाब ज़ैनब के हवाले से है, मुहिब्बान ज़ैनब का, लेकिन इस वक्त चूँकि ये हफ्ता है इमाम ज़माना की विलादत का, तो उनके हवाले से गुफ्तगू जारी है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, माशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करे। मैं समझना चाहता था लेकिन जी उर्दू में, इंग्लिश में या उर्दू में बात करना चाहता, रहने दे अब। जी जी कीजिए। जी, इमाम ज़माना की बहुत सी इस्मत है, अल्लाह खैर करे। इतनी अजमत है कि क्या बताऊं मैं, अल्लाह माफ करे। मौला आएंगे तो कि दुनिया में तकरीबन इंसाफ होगा, कम से कम जालिमों को कत्ल करेंगे और क्या है, बस ये बात। बेशक बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बेशक इमाम मेहदी की खुसूसियत के आप तशरीफ़ लाएंगे तो जब ही दुनिया में इंसाफ कायम होगा और अबू सुफियान की नस्ल में से एक सुफियानी होगा जो बातिल का नुमाइंदा होगा और आपकी आमद की ख़बर सुनकर वो एक लश्कर रवाना करेगा, लेकिन ज़मीन उससे निकल लेगी। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं और इन तमाम तर ज़हूर की जो निशानियां हैं, इनका इल्म होना भी मारिफत इमाम के लिए लाजिम है। आप भी जानने की कोशिश कीजिए, इल्म हासिल करना हम सब पर लाजिम है, हम सब पर फ़र्ज़ है। कहा गया कि माँ की गोद से लेके और क़ब्र तक इल्म हासिल करो, तो इल्म हासिल करो, मालूमात हासिल करो, जानो, समझो और गौर करो, क्योंकि ज़िंदगी में दुनिया में भेजने के जो मकासद हैं उनमें से एक ये है कि आप इल्म हासिल करें और परवरदिगार का शुक्र अदा करें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रज़िया ज़ैदी है, मैं ननीतन से बोल रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप रज़िया? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं लाइव हूँ। जी जी बिल्कुल जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले मैं आपके तवस्सुल से तमाम देखने वालों को, आप सबको इमाम वक्त की विलादत जो कि अब 2-3 दिन में होने वाली है, वो पेशगी मुबारकबाद देती हूँ। खैर मुबारक हो। बेशक जी जी। और बस ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे इमाम की क्या क्या शराइत हैं, ऑलमोस्ट पूरी हो रही हैं अगर देखा जाए, और जो रह गई हैं उन पे भी हमें कॉन्शियस होना चाहिए। और बल्कि हमें इस तरह होना चाहिए कि इमाम खुद ये कहें कि ये मेरे चाहने वाले हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जी। कि हमारे पास तो माशाल्लाह सब है। बीबी ज़ैनब को हम फॉलो कर सकते हैं, अहले बैत को हम फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अहले बैत हैं, हम मौला अली के मानने वाले हैं, तो प्राउडली कहते हैं, तो इस तरह हमें इस तरह बनना चाहिए कि वो कहें कि ये मेरे शिया हैं, बेशक ये मेरे मानने वाले हैं। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो ख़ुद कहें, ऐसा अमल हमारा तर्ज़ अमल होना चाहिए। जो बहुत सी बातें और हैं उनमें से मुख्तसरन बताती चलूँ कि मारिफत इमाम की खातिर दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हमें ये मारिफत हासिल हो जाए। ना सिर्फ उनकी मारिफत के लिए दुआ की जाए, बल्कि अगर हमें उनसे मोहब्बत है तो उनके लिए भी दुआ की जाए, दुआ ग़रीक़ की जाए। वक्त ग़ैबत में इबादतें करना बहुत ज़रूरी है। ज़हूर की निशानियों का इल्म होना लाजिम है। हमारे अंदर एक बेचैनी का होना लाजिम है। हमारी जानिब से सदक़ात का दिया जाना लाजिम है। फिर न सिर्फ ये कि हम सदक़ात दें, बल्कि इमाम की हिफाजत के लिए भी सदक़ात दें। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगी आप अपने टीवी की आवाज़ ज़रा वॉल्यूम कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम आएगा तो फोन लगा।
लाइन ये ड्रॉप हो गई है। तो मैं ये बात कर रही थी कि न सिर्फ ये कि सदक़ात दीजिए बल्कि इमाम की हिफाजत के लिए भी सदक़ात दीजिए। उनकी निस्बत से हज किया जा सकता है, उनकी मोहब्बत में उनकी ईमा पर उनकी निस्बत से तवाफ़ किया जा सकता है, ज़ियारात करवाई जा सकती हैं और की जा सकती हैं। और क्योंकि ये सब उनकी खिदमत में शामिल है कि आप वो यहाँ हमारे सामने हमें नज़र नहीं आ रहे हैं मौजूद। अगर आप नहीं, आपको अगर उनका भी ज़हूर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी खिदमत नहीं कर सकते। हम सदक़ात और उनकी हिफाजत के लिए और उनके लिए दे सकते हैं। और इमाम जाफर सादिक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैं मेहदी के ज़माने में होता तो मैं ताउम्र उनकी खिदमत में रहता। तो इमाम ज़माना का, इमाम आखिर का, हुज्जत आखिर का ये मकाम और ये फजीलत है कि जो कोई उनका ज़माना देखे यकीनन वो खुश नसीब है। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई फरमाइए। हाँ, अभी लाइव कॉल चल रहा है ना प्रोग्राम? जी जी बिल्कुल, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए फोन किया मैंने। जी जी फरमाइए। हाँ, अभी दूसरे का कॉल चालू। लाइन फिर ड्रॉप हो गई है। तो हम जो है बात को मैं यही मुख्तसरन कहना चाहूँगी, इमाम की ज़ियारत की जाए, इमाम के हम खैर ख्वाहों में। और एक बहुत अहम बात वो है कि अपने माल, अपने असबाब से इमाम की मदद की जा सकती है। न सिर्फ इमाम की, उनके चाहने वालों और उनके शियों की अगर मदद की जाए, उनके चाहने वालों को अगर खुश रखा जाए तो ये भी एक तरह से इमाम की खिदमत है। और देखिए जनाब ज़ैनब का, हम जनाब ज़ैनब के हवाले ज़रूर कि आप हर मौके पर, जब मौला अली के साथ थी तो आप जो है वो मदीने से और कूफा तशरीफ़ ले गई हैं इमाम वक्त के साथ, और आपने उनकी मुशाफरत की, उनका साथ दिया। ख़वातीन में जो है वो तबलीग की, कुरान का दर्स दिया करती थीं और इसी वजह से फसीहा और बलीगा मशहूर हुई। फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हर कदम पे इमाम हसन के साथ मौजूद रहीं। फिर इमाम हुसैन के साथ जो आपका किरदार और आपका ताल्लुक़ रहा है उसके दुनिया गवाह है। मेरे ख्याल में मुझे ज़रूरत नहीं है उस बात को दोहराने की कि क्या बीबी का किरदार रहा है और किस तरह आपने मदद की है अपने वक्त के इमाम की और उनके साथ साथ रही हैं। और न सिर्फ ये बल्कि एक बहुत अहम बात यह है कि आपके निकाह की जो शराइत थी, मौला अली ने जो एक शर्त रखी थी वो ये थी कि मेरी बेटी जो है जनाब ज़ैनब की शर्त थी कि मैं जब मेरे भाई हुसैन सफ़र पे जाएंगे तो मैं उनके हमराह जाया करूँगी। तो ये शर्त थी क्योंकि आप इमाम वक्त से इतनी मोहब्बत करती थी, जो अपने भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, जो बाद में इमाम हुए तो आप इमाम के साथ साथ सफ़र किया करती थी और निकाह की शर्तों में। इस बात को खुसूसियत से बताने का मकसद ये है कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ आपके फ़राइज़ या ज़िम्मेदारियाँ बता दी जाएँ, बल्कि साथ साथ ये कि इस्लाम ने आपको बहुत से हुकूक दिए हैं। इस्लाम वाहिद मज़हब है जहाँ पे शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, जहाँ पर औरत अपनी शर्तें बयान कर सकती है। तो इस बात को समझ लीजिए और ऐसा नहीं है कि आप अपने हक़ को छोड़ दीजिए। अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना भी यकीनन एक सही और मस्बत कदम है। तो इसलिए मैंने खुसूसियत से इस बात का जिक्र किया। फिर जनाब इमाम ज़ैनुल आबदीन के साथ साथ जिस तरह आपने उनकी हिफाजत की, जिस तरह आपने उनकी खिदमत की, जिस तरह आपने उनकी ताज़ीम की, जिस तरह आपने उनका जिक्र किया और जिक्र को कायम किया, जिस तरह आपने गिरिया किया, जिस तरह आपने ज़ियारत पढ़ी इमाम की, जिस तरह आपने उनकी ईमा पर जो है वो तवाफ़ किए बाद में मदीना जाने के बाद। तो ये तमाम तर चीज़ें जो ज़ैनब का ये किरदार है, ये हमारे लिए एक मिसाल है कि इस तरह अपने वक्त के इमाम की से मोहब्बत का ये तकाज़ा होता है और इस तरह मोहब्बत की जा सकती है। हम तो खैर उनके कदमों के खाक हैं, हम कहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी चलते चलते कि इतरत में बेमिसाल, शुजाअत में बेबदल, इतरत में बेमिसाल, शुजाअत में बेबदल, कदमों में भी सिबात, इरादों में भी अटल, सीरत में बुर्दबार, बसीरत में बेखलल, मयार बावकार तो गुफ्तार बरमहल, इंसान को ज़िंदगी का करीना सिखा गई, ज़ैनब हुसैनियत को भी जीना सिखा गई। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान डॉक्टर निखत इफ्तिखार को। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़।